Special case of capital gains, self-generated asset. We often come across names of different assets which cannot be touched, which are not visible, but they are equally important as any other asset in the business. I am talking about assets which are self created, or at the time of creation or acquisition the assessee did not pay any money. So it did not cost any money to the assessee. Whose capital asset are we talking about? So self generated assets are assets which are created or which are acquired without any money. So we are taking, if I tell you some examples, I can tell you like goodwill of a business, tenancy rights, loom hours, route permit. These are some of the examples of self generated assets or invisible assets, or assets which did not cost any money at the time of creation. So there are, if we come into the tax treatment of these particular kind of assets, then we have to keep in our mind that if the self-generated asset being the goodwill of the business or profession, if it is the not loom hours, if it is the goodwill of the business or profession, if it is the route permit, if it is the trade right to produce the article or any item, and right to carry on the business, if self-generated assets fall under these names, then when we are selling these kind of assets, at the time of sale we are not allowed to deduct any cost of acquisition or any cost of improvement. So self-generated assets being goodwill, being right to produce any article or item, being right to carry on business, in these kind of assets no cost of acquisition or no cost of improvement is allowed. Only expenses at the time of transfer is allowed to be deducted from full value of consideration to find out the capital gains which is taxable in the hands of assessee. Now self-generated assets being tenancy rights, route permit, loom hours, trademark or brand name associated with the business or profession. If assets, self-generated assets categorized under any of these, then cost of acquisition will always be considered as nil, because these are again self-generated assets. But cost of improvement and expenditure at the time of transfer will be considered on actual basis. So whenever an improvement expenditure is made, or whenever expenses incurred at the time of transfer is incurred, then that amount of expenditure will be deducted from full value of consideration to come to capital gains. Let us see one example. One more point. Fair market value. If the self-generated asset which is transferred in this particular financial year we are talking about, and its acquisition is taken place before 1/4/2001, then fair market value as on 1/4/2001 will not be considered. It is said in the law that in case of self-generated assets, fair market value as on 1/4/2001 is not considered. Let us see one example. Before seeing an example, let me re-explain the entire thing. Self-generated assets उन assets को कहा जाता है जो assets एसएससी अपने दम पे बनाता है, अपने आप से क्रिएट करता है. ये उन assets के बारे में हम लोग बात करते हैं जो बहुत साल लगते हैं कोई भी asset, कोई भी business को क्रिएट करने में. ये business का गुडविल है या बिजनेस का बहुत अच्छा नाम है, जिसके वजह से, जिसके ब्रांड नेम के वैल्यू के वजह से प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल होते हैं बहुत बढ़िया तरह से. एंड देयर आर इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कस्टमर्स हु आर अप्रोचिंग एवरी डे फॉर हु आर आस्किंग फॉर द गुड्स और सर्विसेज दैट द कंपनी इज प्रोवाइडिंग. सो ये सेल्फ जेनरेटेड एसेट जब ट्रांसफर किया जाता है, उस समय में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और
कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड एक्सपेंडिचर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। ये 3 तरह के अमाउंट्स होते हैं जो हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से यूजुअली माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं टू रीच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अगर हमारा कैपिटल गेन्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर सेल्फ जनरेटेड एसेट्स जो कि गुडविल ऑफ द बिजनेस है या प्रोफेशन है या फिर राइट टू प्रोड्यूस एनी आर्टिकल है या फिर आपका बिजनेस को चलाने का राइट है, इन तरह के एसेट्स को अगर आप सेल करते हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हमें अलाउ नहीं किया जाता, वो नील होता है हमेशा। खाली एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर इज कंसिडर्ड एज फुल, जो फुल मतलब वो अलाउ होता है। इन केस ऑफ ब्रांड नेम, इन केस ऑफ रूट परमिट, इन केस ऑफ लूम आवर्स। अच्छा, लूम आवर्स में बहुत कंफ्यूजन होता है कि लूम आवर्स होता क्या है। देखिए, लूम आवर्स कोई भी एक फैक्ट्री में, कोई भी एक मशीनरी डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी मशीन्स को यूज़ करने के लिए एक राइट खरीदना पड़ता है। मतलब अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे पास वो मशीन नहीं है जो मशीन से मेरे प्रोडक्ट को बनाया जा सके, या फिर एक प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी मशीनरी चाहिए जो मेरे पास नहीं है, मैं वो मशीन किसी और के पास जाके रेंट कर सकता हूँ। अब रेंट में क्या होता है कि मैं वो मशीन अपने पास तो लेके नहीं आ सकता, आई हैव टू यूज इट इन देयर ओन प्रेमाइसेस। तो जो भी टाइम पीरियड वो फैक्ट्री जिसके पास वो मशीनरी अवेलेबल है वो नहीं यूज कर रहे हैं, उस समय में मैं उनसे वो मशीन का राइट ले सकता हूं कि मुझे कुछ वक्त तक ये मशीन को यूज करने के लिए दिया जाए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक जो फैक्ट्री के पास वो मशीन है वो यूज करती है, तो मैं शाम के 5 बजे के बाद वो मशीन का अधिकार या राइट टू यूज ले सकता हूं। ठीक है, सो जब इस तरह का बात आता है उसे हम लोग कहते हैं लूम आवर्स। ना लूम आवर्स, ये इस तरह के जो एसेट्स हैं इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर एक्चुअल बेसिस में अलाउ होता है। फेयर मार्केट वैल्यू बिफोर 1/4/2001 या फिर ऑन 1/4/2001 जो है इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट अलाउ नहीं होता है, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज नील। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विच विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। X transfers the following asset on May 15, 2019. Land acquired, ये क्वेश्चन में देखिए 3 कॉलम है, कॉस्ट है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन April 1, 2001 है, एंड देन पास में लिखा हुआ है सेल कंसिडरेशन। तो वी हैव 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स। द फर्स्ट वन इज लैंड, द सेकेंड वन इज गुडविल एंड द थर्ड वन इज सेल्फ टेनेंसी राइट्स। ठीक है, टेनेंसी राइट जो कि मेरा सेल्फ जेनरेटेड एसेट है। चलिए, सो लैंड जो है उसका कॉस्ट है जो कि खरीदा हुआ था 1968 में, उसका कॉस्ट 20,000 रुपया है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 इसका 45,000 दिया हुआ है और इस एसेट को बेचा जा रहा है 6,85,000 में। दूसरे एसेट में आते हैं गुडविल ऑफ द बिजनेस। गुडविल ऑफ द बिजनेस में कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं, ऑब्वियसली ये तो खरीदा हुआ नहीं है, ये तो ओवर द ईयर खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। फेयर मार्केट वैल्यू इसका यहाँ पे 1/4/2001 में 10,000 रुपीज़ दिया हुआ है। याद रखिए, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ रहेगा इन्फॉर्मेशन, आपको वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करना है कि नहीं करना है ये आपके ऊपर है। सो आपको हमेशा याद रखना है रूल क्या है। सो इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट वी नो दैट नो फेयर मार्केट वैल्यू इज कंसिडर्ड एंड नो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज टू बी डन। ठीक है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी इन केस ऑफ गुडविल नील होगा। चलिए, तो यहाँ पे फिर भी दिया हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 में 10,000 कंफ्यूज करने के लिए। सेल कंसिडरेशन 1,75,000 है। इन केस ऑफ टेनेंसी राइट जो कि सेल्फ जनरेटेड एसेट अगेन है, वो आपका कॉस्ट तो नील है, यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू 30,000 है एंड इसको बेचा जा रहा है, सेल कंसिडरेशन 2 लाख रुपीज है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। Does it make any difference if the goodwill is of a profession? चलिए देखते हैं, चलिए एक बार देखते हैं इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे, हम लोग पहले एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे टेबल में हम लोग लैंड, गुडविल एंड टेनेंसी राइट्स पास लिखेंगे। ठीक है, नाउ द फर्स्ट थिंग इज
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और सेल कंसिडरेशन हम लोग लिखेंगे। सेल कंसिडरेशन फॉर लैंड हमारा 6,85,000 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग गुडविल में आएंगे। गुडविल यहाँ पे 1,75,000 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दिया हुआ है और टेनेंसी राइट्स का हमारा 2 लाख रुपीज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। खाली हमें याद रखना है इन केस ऑफ लैंड ओनली इंडेक्सेशन इज टू बी डन। फॉर गुडविल एंड टेनेंसी राइट जो कि सेल्फ जनरेटेड एसेट है, उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी नील इवन इफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 इज गिवन इन द क्वेश्चन। फेयर मार्केट वैल्यू इन द क्वेश्चन इज गिवन ओनली टू कंफ्यूज द स्टूडेंट, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज टू बी टोटली इग्नोर्ड। Now, so indexed cost of acquisition in case of land. So land तो खरीदा हुआ था 1968 में, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 में दिया हुआ था 45,000। सो फेयर मार्केट वैल्यू जिस साल दिया हुआ था उस साल का CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमारा 100 है और इस साल का 289 है। सो हम लोग क्या करेंगे, 45,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 289 वी आर गेटिंग 1,30,050 रुपीज। सो हम लोग कॉस्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लिख देंगे 1,30,050 रुपीज इन केस ऑफ लैंड। फॉर गुडविल एंड टेनेंसी राइट नील आ जाएगा और हमारा अब आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। लैंड का आ गया 5,54,950 एंड इन केस ऑफ गुडविल 1,75,000 एंड इन केस ऑफ टेनेंसी राइट 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख यहाँ पे आ गया, खत्म। चलिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ था हमको कि डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ द गुडविल इज ऑफ एनी प्रोफेशन। तो अगर ये प्रोफेशन का होता है तो क्या होता है, अरे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इफ अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज ऑफ प्रोफेशन इज ट्रांसफर्ड इट इज नाउ चार्जेबल टू टैक्स। तो ये वैसे भी चार्जेबल टू टैक्स होता। याद रखना है हमें कि जो भी कैपिटल एसेट्स के बारे में जो कि सेल्फ जनरेटेड एसेट है वी हैव डिस्कस्ड इन दिस क्लास, इसके अलावा और जो भी सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के बारे में अगर आपको पूछा जाए इट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है।